class. So let's go through the problems 5, 6, 7. Okay. In the last class, we did it the other way, which means we did not take the tax effect. ठीक? और उसका लॉजिक मैंने ये दिया था कि tax effect is shown in net income. Okay? मतलब tax normally we calculate in the end ना, तो हमने उस तरीके से उसको किया and we took the figures and we simply calculated just like Nihal has done. मैंने भी यही काम किया. But then I realized somehow कि अगर tax effect डाल दे तो क्या effect पड़ेगा, और अभी हमने थोड़ी देर पहले भी चेक भी किया तो बुक में भी उन्होंने इसी तरीके से किया. ठीक है? So let's put the tax effect over here. और फिर उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा, then you will be able to compare कि दोनों में क्या फर्क पड़ेगा. निहाल, आपके हिसाब से बगैर टैक्स इफेक्ट के you have the figures for these two problems ना, ठीक है? कंपेयर करते हैं. अभी इसको बगैर टैक्स इफेक्ट के साथ करते हैं. बगैर टैक्स इफेक्ट के निहाल ने किया और फिर उससे हम लोग आंसर्स लेके चेक करते हैं. Let's start. Zara Electronics can make either of two investments at time 0. So you have two options, project A, project B. Assuming a required rate of return of 14%. So this is your required rate of return, which is 14%. Okay, and then further it says determine for each project the payback period, the net present value, the profitability index, and the internal rate of return. So you need to find out the internal rate of return. इसको required rate of return कर दें. Internal rate of return. Assume under makers the asset falls in the 5-year property class and the corporate tax rate is 34%. So you need to remember the 5-year property class. कि 5-year property class में क्या क्या चीज़ है? ठीक? The tax rate is given which is 34%. Okay. The initial investments required and yearly savings before depreciation and taxes are shown below. ये दो आपके पास आ गए projects. ये initial cash flow. ठीक है? Initial cash outflow. These are the cash inflows. 7 सालों तक आपको ये वाले cash inflows मिलेंगे. अब हम लोगों ने करना क्या है? हम लोगों ने ये different चीजों को calculate करना है. But the problem is कि should we use the same figures or do we need to change it? Because now we have two things. We have depreciation and then we have tax. हमारे पास दो चीजें आ गई. Depreciation से normally क्या? Depreciation is what? Is a systematic allocation of cost over the useful life. So the useful life over here is 7 years, let's say, but it is a 5-year property class. So if it's a 5-year property class, so you will have depreciation for 5 years. 6 years. 6 years. Okay, 6 years. ये भी हो गया. अच्छा, अब आगे चलें. अब रेट सबको याद है? मेकर्स वाले नहीं आते. मेकर्स वाले याद नहीं है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करें, मैंने आपको तरीका बता दिया था उसकी कैलकुलेशन का. इसको याद है तरीका क्या बताया था मैंने? सर मेकर्स इज बेसिकली योर मेकर्स इज अ डबल डिक्लाइनिंग मेथड. हाफ ईयर कन्वेंशन. और पहले वाले साल में हाफ ईयर होगा. ठीक है? सो इफ इट्स अ 5-year property class, so the rate is 20%. And if it doubles 40%, or for the first year it will be 20%. याद है ना सबको ये बात? Yes, sir. Okay, so the first year is 20%. मैं आपको सिर्फ 2 years करके बता दूंगा, बाकी आपको खुद करना है. Okay, so the first year is 20%, which means the depreciation for the first year would be 2000. Depreciation for the first year would be 1600 sir. किस तरह फाइंड आउट किया? Sir 8000 into 0.2. 8000. Why 8000? Okay sir. This 8000 is the cash inflow. बुक वैल्यू लेके जाए. हाँ, और वो कौन सी है? 28. ये. Just 5000. ठीक है? Okay, so 28,000 का 5600. 5,600. Okay, so 5,600 is the depreciation for this one. जी sir. ये भी क्लियर हो गया? अच्छा. दूसरी चीज उसने इसमें एक और क्या चीज दी है? 34%. Tax rate 34%. Tax rate 34%. So what's the connection between tax and depreciation? डिप्रिसिएशन टैक्स कम करेगा. हाँ, depreciation is a tax deductible expense. Yes, sir. ठीक है? इसका मतलब इसका आपको टैक्स कम देना पड़ेगा. कम देना पड़ेगा, टैक्स सेविंग हो जाएगी ना? Yes. टैक्स सेविंग हो जाएगी. That is interest expenses, sir, which is tax. यानी डिप्रिसिएशन भी इनकम को कम कर देता है. Depreciation इनकम को कम नहीं करेगा. खुद के लिए करते हैं, लेकिन Expense तो है ना. Other expenses, okay, sir. टैक्स वाले क्या कहते हैं? भूल गए. टैक्स वाले क्या कहते हैं? टैक्स वाले क्या कहते हैं? क्लास. वो हमने क्लास भूल गए आपको. that was chapter 2. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. chapter 2. chapter 2. और ये जल्दी से मैं आपको बताता हूँ टैक्स वाले क्या है. वो बोनस डिप्रिसिएशन वाली चीज है. बोनस डिप्रिसिएशन को
उसने क्वेश्चन में नहीं कहा ना, तो उसको तो छोड़े आप, सिर्फ सिंपल डेप्रिसिएशन की बात करें। टैक्स वाले क्या कहते हैं? टैक्स रिलीफ दे देते हैं। टैक्स, अच्छा तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि वो कहते हैं कि ये बेकर्स, हाँ, और इसमें क्या कहा था इसने क्या कहा था? इसने यहाँ पर कहा था कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने के लिए सर ना, वो तो 50%। इसने कहा था इस सब को छोड़ दे, ये एक्स्ट्रा क्लॉजेस है, इसको छोड़ दे। जो सिंपल, जिस तरह ये इसने कहा था ना टैक्स डिडक्टिबल, ठीक है, इस तरह क्या हम लोगों ने ये नहीं देखा कि कहीं पर भी इसने कहा कि नहीं, डिप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं था। कुछ नहीं कहा था, नहीं, शोर टैक्स के बारे में, यस श्योर। और मैंने कहीं पे आपको ये नहीं बताया कि जब आप लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं इनकम, टैक्सेबल इनकम, तो उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। यस सर, बताया ये था? आपने कहा। अच्छा, क्या मैंने ये कहा था कि ये जितने भी मेथड्स हैं, ठीक, तो टैक्सेशन अथॉरिटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड दे प्रेफर एक्सेलरेटेड मेथड्स। बिल्कुल। बताया था मेकर्स जो है वो यूएस का प्रेफर्ड मेथड है फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। पाकिस्तान में एक्सेलरेटेड मेथड आपने इस्तेमाल करना है फॉर टैक्स पर्पसेस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेकर्स जो है ये सजेस्टेड ही बाय द टैक्सेशन अथॉरिटी, ठीक है। Yes. तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका एक्सपेंस जो आप माइनस करेंगे टैक्सेबल इनकम से, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको टैक्स का बेनिफिट देगा, ठीक। हाँ, और टैक्स रेट कितना है? 34%। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5600 मैं करूंगा, इससे मुझे टैक्स की सेविंग मिलेगी, यस सर, बेनिफिट मिलेगा। टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ओके, कितना बेनिफिट मिलेगा? 1904 1904 1904 1904 यही आ रहा है, यस चेक कर लिए सब? Yes sir. Okay, 1904. So that means now this would be how much? Instead of 8,000. माइनस हो जाएगा 1904 1904 9904 सर माइनस नहीं करेंगे सर, प्लस करेंगे सर 6096 सर, ये तो- आ रहा है सर। क्या करेंगे? सर प्लस करेंगे क्या करेंगे सर? सर ये जो टैक्स का रिलीफ है ये माइनस कर देंगे। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि हम लोग, हमने ये तो देख लिया ना कि ये आपके पास इनिशियल कैश, सॉरी ये आपके पास कैश इनफ्लो, 1904 इसके पहले ईयर में ये टैक्स आप लोग, सॉरी ये डेप्रिसिएशन आप लोग रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस। यस सर, एक्सपेंस हमेशा इनकम से क्या होता है? माइनस माइनस होता है, ठीक। लेकिन ये पूरा एक्सपेंस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्यों? Yes sir. क्योंकि इसमें से 34% टैक्स इनकम है। ये टैक्स में मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से मैं कितना माइनस करूं फिर? माइनस करेंगे जो रह जाएगा वो कितना? 3696 3696। तो आपके पास इनफ्लो कितना आ गया? 8000 माइनस 3696 4304 4304 4304 304 ये इनफ्लो आ गया आपके पास, यस सर। ठीक है। इसी तरह आप इसका इनफ्लो फाइंड आउट कर लेंगे। सर देखिए दोबारा दोबारा एक्सपेरिमेंट, लॉजिक दोबारा गौर से सुने, लॉजिक दोबारा गौर से सुने। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मैंने एक एसेट लिया, उसके ऊपर शुरू में कुछ इन्वेस्टमेंट की, ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ये दो डिफरेंट किस्म के एसेट्स हैं, दो डिफरेंट किस्म की एसेट्स हैं, कोई भी एसेट हो सकता है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी चार्ज होगी। उसने आपको डिप्रिसिएशन का रेट बता दिया, 5 ईयर प्रॉपर्टी क्लास। 5 ईयर प्रॉपर्टी क्लास को मैंने रिवाइज किया, हमने कहा ये 6 इयर्स पे होगा, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल होगा, सो इन द फर्स्ट ईयर द रेट वुड बी 20%, ठीक। 20% मैंने इसके ऊपर, अब इसका 20%, बुक वैल्यू को 20% दे देते ना, वो मैंने लिया तो मुझे पता चला कि इसका एक्सपेंस कितना आएगा फॉर द फर्स्ट ईयर। सो इन द फर्स्ट ईयर आई एम गेटिंग सम कैश इनफ्लो, okay, but then there is an expense as well, so I've deducted that expense. I'm supposed to deduct this expense, so 8000 minus 5600 ये काम करना है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं 4% ये, हाँ, ये पूरा 5600 माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मेकर्स की जो डिप्रिसिएशन है ना, एग्जैक्टली यही अमाउंट टैक्सेशन अथॉरिटी कहता है कि अगर आप ये चार्ज कर दें तो आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, लेट्स टेक बेनिफिट फ्रॉम दैट। मैं इससे बेनिफिट ले रहा हूँ कितने का? 34% मुझे टैक्स लगता है, ठीक है। 34% टैक्स ब्रैकेट जो है वो मेरा टैक्सेशन का रेट है। तो मैं
देख रहा हूँ कि इससे 1904 मेरे पास आ रहा है, ठीक। 1904 इसका मतलब ये है कि 8000 5600 तो ये हो गए, लेकिन 1904 का मुझे एक बेनिफिट मिल रहा है, तो इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास 3696 आ गया। तो मैंने कहा कि 8000 मेरे पास आ रहा है, ठीक, और मुझसे जा रहा कितना है, 5600 नहीं जा रहा, मुझसे जा रहा है 3696 जा रहा है। तो 3696 अगर ये जा रहा है मुझसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5600 सॉरी 8000 माइनस 3696, तो मेरा कैश जो नेट कैश इनफ्लो है दैट इज 4304। Is it 4304 for the first year? 7184 है। 7184 184 for the first year. for the first year. For the first year 7184 Yes. 7184 how come 8000 Yes, sir. minus 3696 अच्छा 8000 minus 1904 फिर भी नहीं आ रहा ये सर। भी नहीं आ रहा what have I done 6000 इसको पॉज कर दें टैक्स बेनिफिट ही निकालना Start वाले। 8000 okay class so let's have a look at the calculation again 8000 you see your cash inflow इसके ऊपर expense is 5600 depreciation ठीक है depreciation इसमें से माइनस कर दें you get a income of 2400 on that income you will have a tax of 34% Which is 816 so you are left with 7184 after tax Sir, how is Take it. 7,184? Just we deducted the tax benefits which is inflow. Sir, how we can deduct inflow? 816 to inflow is sir. inflow नहीं inflow मेरे पास ये है ये तो tax benefits है, so isn't that inflow for नहीं the business? this is my inflow 8000 is what I am getting देखें इससे पहले था without tax if we ignore tax तो inflows आपके पास कौन से होते थे ये जो given है। ये जो ऊपर given है 8000 ठीक हमने depreciation भी नहीं किया हमने कुछ भी नहीं किया सही अब वो कह रहा है कि ये depreciate होगा जब depreciate होगा तो depreciation का expense कितना आएगा इसका 5,600. 5600 ठीक है expense इतना है और income मुझे उससे कितना आ रहा है 8000 और expense इतना है तो profit कितना आ रहा है मुझे इसमें से 8000 minus 5600 2400 2400 आ गया ठीक टैक्स किस चीज पे लगता है इनकम पे इनकम पे कितना टैक्स लगेगा 34% 34% 2400 का कितना हो गया 816 816. ठीक है 816 हो गया 816 इज माय टैक्स टैक्स From savings. तो वो माइनस हो ठीक अब मेरे पास इनफ्लो कितना है 8000 टैक्स कितना है 816 816 तो आफ्टर टैक्स इनफ्लो कितना है 7184 7184 ठीक इसी तरह इसका भी आफ्टर टैक्स इनफ्लो आ जाएगा यस इसी तरह इसका भी आफ्टर टैक्स इनफ्लो आ जाएगा इसका भी आ जाएगा इसका भी आ जाएगा इसका भी आ जाएगा इसका भी आ जाएगा द ओनली डिफरेंस वुड बी दिस इज 5600 उधर हम 40% लेंगे दूसरे साथ. इधर हम 40% ऑफ व्हाट 32% लेंगे 28,000. 20,000 अकॉर्डिंग टू मेकर्स 32% लेंगे 5 इयर्स प्रॉपर्टी क्लास में अकॉर्डिंग टू मेकर्स 32% लेंगे आप 40% कैसे कह रहे हैं मुझसे Sir, double declining. डबल डिक्लाइनिंग डबल डिक्लाइनिंग तो है सर 8,000. डबल डिक्लाइनिंग तो है लेकिन एक मिनट सही है अहमद सुलेमान दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है आप डायरेक्ट रेट्स Yes. आपने टेबल देखा होगा आप टेबल से कह रहे हैं Yes. अच्छा अहमद सुलेमान जो कह रहा है रेट उसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा Sir, 28,000 को into नहीं. 0.1. अब आप गलत कह रहे रिमेनिंग बुक वैल्यू हैं रिमेनिंग बुक वैल्यू 20,000 अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो रिमेनिंग बुक वैल्यू से और अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं जो जो होल होल 28000 फिर 28,000 जी, सर. दोनों में फर्क है जी सर. ठीक है तो अगर दोनों तरीके सही हैं दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा लेकिन दोनों तरीके फिर अलग रखने हैं ये तरीका इसलिए आई वुडंट रिकमेंड निहाल वाला क्योंकि इसके लिए आपको टैक्स रेट याद करने पड़ेंगे Yes, sir. व्हिच इज नॉट पॉसिबल ना रटा लगाना पड़ेगा ठीक सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट आपका तरीका सही है बट देन यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद द रिमेनिंग बुक रिमेनिंग Remaining book value. ये सही? 5,600 निकालेंगे 5600 कर लें अगर करना चाहते हैं 28000 5600 क्या आएगा 22400 22400 so now 40% into 40% सर ये 8,960. 8960
8960. 8960 Yes, sir. जी कितना आएगा 8960 8,000 960 Into ये आ गई 34%. ये क्या आ गई इसकी ये डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है Depreciation expenses. 8060 डिप्रिसिएशन एक्सपेंस शो 8000 Yes, सर ये इसलिए हाफ ईयर के लिए ना 6 मंथ के लिए और 20% रेट के साथ और ये 40% रेट के साथ इसलिए ज्यादा आया है 32% से चेक करिए यार 32% से चेक करें आप जो कह रहे थे 32% मल्टीप्लाई बाय 28000 सही है यार यही है ओके सो 8960 आ गया इसके ऊपर टैक्स कितना है 34% नहीं है सर ये पहले माइनस करेंगे ना पहले माइनस कर दें 8 minus 8960 960. 960 but 960 is your माइनस Negative माइनस 960 इस पे टैक्स नहीं 8000 तो फिर इस पे क्या होगा इस पे तो टैक्स नहीं लगेगा इस पे क्या होगा बैकवर्ड देना है हां 2 year रिलीफ टाइप का ठीक है रिलीफ है रिलीफ का क्या रूल था Two years. 2 years और 20 years 20 years को 1860 ठीक है तो इसका मतलब ये है कि इसको इधर भी लेके जा सकता हूं 2 years तक इसको ऑफसेट करने के लिए और 20 years फॉरवर्ड भी लेके जा सकता हूं ठीक है जी सर. तो और पहले क्या करना था हमने क्या कहता पहले क्या Backward. करेंगे बैकवर्ड से Backward. तो पहले इसको बैकवर्ड ले जाएंगे और भी कम ठीक ये और भी कम हो जाएगा जी सर. इसका मतलब इंस्टेड ऑफ 7184 दिस वुड बिकम 816 प्लस हो जाएगा फिर 8 वो ज्यादा हो जाएगा सर टैक्स कम होगा ये 816 इसमें ऐड हो जाएंगे ना 960 इधर माइनस है ना Yes, sir. Negative. ठीक है जी तो सर. जब इसको बैकवर्ड लेके जाएंगे तो क्या किस तरह करेंगे बैकवर्ड बैकवर्ड ये करेंगे जो टैक्स Backward. दिया होता है 2400 से वो 960 माइनस करेंगे एक वक्त में जो टैक्स दिया होता है वो हम रिटर्न हाँ तो ये कितना 816 आपने टैक्स दिया तो 816 तो ये हट जाएगा ना ये 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 हट जाएगा ठीक फिर भी नेगेटिव आएगा फिर भी नेगेटिव आएगा तो फिर वो उसको आप आगे जाइए एक साथ आगे पीछे और भी जा सकते हैं दो लेकिन एक साथ पीछे क्या है कुछ नहीं इसमें कुछ नहीं तो इसके आगे ठीक है अच्छा 960 जब इधर आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा Yes, sir. ये 0 और 144 ऐसे आएगा हमारे पास. How sir 962 or it's taxable income and 1816 is already tax तो वो आप सर जाएगा ना 2400 से माइनस नहीं होगा सर वो आप पैसे सर वापस 960 का टैक्स पार्ट करो रो 1816 से ऑफसेट करो ये ले ठीक और ये आ गया आपके पास वेयर वाज इट फर्स्ट वन और सेकंड वन Sir, वाज इट द फर्स्ट वन और द सेकंड वन second one है sir. ये Second one. नीचे सर नीचे थोड़ा नीचे सर. Sir. ठीक है sir. can carry that loss back 2 years. carry back 2 years and for 20 years to offset operating gains in those years operating gains in those years ठीक है जो आपके गेन्स थे जी sir. यानी जो आपके Net profit. प्रॉफिट्स थे ये Sir. बिफोर टैक्स नहीं होता सर ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स नहीं होता ऑपरेटिंग गेन्स बिफोर टैक्स वाले गेन नहीं होता हाँ तो बिफोर टैक्स और ऑपरेटिंग गेन होता है तो ऑपरेटिंग गेन को माइनस कर दें उसमें से उसको माइनस कर दें और फिर उसको टैक्स टैक्स में माफ तो ये 2400 से माइनस होगा 960 माइनस ये 2400 आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था यस सर Yes, sir. ओके सो 960 माइनस 24 equals this will become 1440 multiply by 34% 489.6 489.6 minus 8000 84 नहीं 7510 7510 इसने कैरी बैक कैरी फॉरवर्ड में कुछ कहा हुआ है सर मैंने में ऐसा कुछ नहीं नहीं इसने कुछ कहा हुआ है क्वेश्चन No. नहीं कहा हुआ अगले क्वेश्चन में देखें इसमें भी नहीं है इसमें है if profits after taxes on the project are negative in any year the firm will offset the loss against other firm income for that year ठीक है ऑफसेट कर रहा है बट अगेंस्ट अदर फर्म इनकम फॉर दैट ईयर कोई और इनकम से उसी साल का यानी कैरी बैक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा यस सर तो कैरी बैक कैरी फॉरवर्ड जब उसने नहीं कहा तो फिर ये काम ना करे Sir, so लेकिन अदरवाइज दिस इज हाउ यू शुड हैव डन क्लियर manual में 960 का 34%. सर मैंने तो बस उन्होंने क्या किया हुआ है उन्होंने ये किया हुआ है कि उन्होंने सिंपली उन्होंने 960 नेगेटिव
Yes. 34 नेगेटिव का 34%, 320. फिर इसको which ऐड is a करिए tax credit, यस सर which is a tax credit ना, कितना आएगा? 489. 326 326. 326 is 960 का, यस 34% is 326, Yes. and this 326 अब जब टैक्स होता है तो वो इसमें से माइनस होता है, लेकिन तो ये इसको already इन्होंने प्लस कर दिया प्लस कर दी, 8,326. उन्होंने टैक्स क्रेडिट दे दिया। सही ठीक है? सही है? ठीक है सही है ना? या तो ये कि आप इसको किसी और साल में एडजस्ट कर दें, अगर नहीं है तो आपको उसी वक्त आपको टैक्स क्रेडिट मिल गया, आपको उल्टा रिवर्स हो गया। ठीक? वैसे इस तरह होता नहीं है प्रैक्टिकली, आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है जो कि आप अगले सालों में एडजस्ट कर देते हैं किसी अगले साल में, और फिर यहाँ पे पिछले साल की भी प्रोविजन है, पाकिस्तान में अगले साल में एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे पिछले सालों की प्रोविजन है तो आप पिछले साल पहले करेंगे तो फिर अगले साल में। ठीक है? पाकिस्तान में पिछले सालों की प्रोविजन नहीं है, पाकिस्तान में अगले सालों की प्रोविजन, आप अगले साल में इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक? क्लियर? यस क्लियर है? Yes, sir. सारी चीजें क्लियर? आगे करने की जरूरत है? 510 से करा बस समझ गए 510. सर 7510 सर This is in case जी सर if we carry back 1 year. 1 year ठीक है? जी सर When we carry it back 1 year, the amount is Sir, 960. Yes, This sir. will be deducted from operating gains. 2400 तो हमारे पास आ गया 140 960? 440 यस सर ठीक है? तो 9. 1440 आ गया हमारे पास सही है ना सर, इससे 14 1440 आ गया हमारे पास गेन प्रॉफिट्स होता है ना माइनस सर इधर से टैक्स जो टैक्स आपने दिया होता है ना, वो टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाती है। Yes, sir. टैक्सेबल लायबिलिटी जो होती है ना, टैक्स इनकम टैक्स लायबिलिटी वो कम होती But you have already paid that tax. है। You have already paid that tax, so इसलिए बिकॉज़ पाकिस्तान में फॉरवर्ड ईयर्स में, ठीक है, फॉरवर्ड ईयर्स में होता है तो आपने यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी लेट से बढ़ गई आपकी 520, ये 960 आ गया, ये माइनस हो जाएगा, सो यू पे जीरो टैक्स। ठीक, 960 में से 520 गया, बाकी कितना बच गया? जो भी बच गया अगले साल उसको एडजस्ट कर लें, बच गया अगले साल एडजस्ट कर लें। समझ आ रही है मुझे? अब इसमें से कितना बच रहा है, अभी क्या बच रहा है? तो वो तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन प्रूव की, ठीक है, क्या हमने कहा आगे सिंपल सेम कैलकुलेशन, लेकिन अगर करना पड़े तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक, लेकिन क्वेश्चन में इसका जिक्र नहीं है, इसे नहीं करना, ठीक है, मैं आपको कह रही नहीं करता क्योंकि क्वेश्चन में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली काम करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, आप माइनस करें पहले पीछे और फिर 2 साल बैकवर्ड, 20 इयर्स फॉरवर्ड। क्लियर है? यस Sir, अब जब आपके पास कैश फ्लोज आ जाएंगी, अच्छा तारिक, sir, in first cash flow we have tax gain. I mean, like it's a kind of other income, but still there is a reduction in the inflow 8,000. And second में जो है loss हुआ है tax की वजह से, और फिर भी टैक्स की वजह से लॉस नहीं हुआ, हमारा अच्छा टैक्स की वजह से टैक्स compensation जो टैक्स है वो ज्यादा है और जो इनफ्लो है वो कम है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमें नेगेटिव हो गया, यानी टैक्स मैंने ज्यादा दूंगा, इसके ऊपर जो टैक्स आ रहा है वो ज्यादा है। टैक्स ज्यादा नहीं सर, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा हो गया। depreciation expense. ये था हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अच्छा सॉरी लॉस आ रहा है, यस सर ठीक है, लॉस आ रहा है, ठीक, यानी ये मेरा गेन्स था, ये मेरा इनफ्लो था और ये मेरा आउटफ्लो हो रहा है, यस सर ठीक है, तो आउटफ्लो ज्यादा है मेरा इनफ्लो से, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ नेगेटिव है, तो फिर उस नेगेटिव का जब मैंने टैक्स निकाला तो वो भी नेगेटिव आ, मजीद negative, तो tax को add करें. ठीक है, जब मजीद नेगेटिव आ गया तो अब मैंने नेगेटिव, देयर इज नो सच थिंग एज नेगेटिव ना, सो दैट मींस कि इसके साथ, तो अगर नेगेटिव मैं टैक्सेशन अथॉरिटी से कहूंगी यार मेरा तो लॉस हो गया है और उसमें ऊपर टैक्स रेट के मुताबिक ये आ रहा है, तो वो कहेगा, कहता नहीं है लेकिन क्या है, वो कहेगा ये पैसे आप ले लो, इस तरह कहता नहीं, वो कहता अगले साल में एडजस्ट करो, ठीक है, लेकिन वो आपको कह रहा है ये पैसे आप ले लो, तो उसने आपको पैसे कितने दे दिए? 326, 8000 पहले से थे, so 8000 plus 326 that makes 8326, so now your total cash inflows are 8326, सही है? सही है आगे कर लेंगे, करनी सर थोड़ा सा complicated हो गया है। एक और सर पेपर बना देना बस, तो बाकी कर लेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ पेपर में आपको ये एडजस्टमेंट भी दे दूँ साथ, नहीं नहीं सर ये तो मुश्किल हो जाएगा। ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। Choice पे छोड़ेंगे. फिर टैक्स तो वैसे भी आगे पढ़ेंगे, टैक्स आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें कर लेंगे। हमारा अच्छा इतना तो कर लेंगे ना,
नहीं सर, एक क्वेश्चन क्लियर करें ना सर। आपने हमें कहा था ना पिछले मतलब सेकंड चैप्टर में कि जब हम 2 ईयर बैक जाएंगे तो हम टैक्सेबल इनकम को रिकवर करेंगे। टैक्सेबल इनकम वो टैक्स रिटर्न नहीं, नहीं, होने टैक्स के बाद टैक्स को रिकवर करेंगे। टैक्स को रिकवर करेंगे, जो टैक्स हमने दिया है ओके उसको रिकवर करेंगे। और इधर आपने जो टैक्सेबल इनकम है उससे माइनस किया और टैक्सेबल इनकम और दोबारा उसका परसेंटेज लेके फिर से तो इस तरह कैसे किया है सर? कैसे खुद होना तो ये चाहिए था कि 816 हमने जो पे किया है उससे हम रिकवरी करें ना कि हम वो ऊपर जो हमने 2400 निकाले हैं उससे करें। हाँ? ओके फुल करेंगे। एमएच हमने एक जगह पे ऑपरेटिंग लॉस किया, एक जगह पे हमारा ऑपरेटिंग गेन, ठीक है। ऑपरेटिंग लॉस ऑपरेटिंग गेन के साथ ऑफसेट है, ठीक। अच्छा, मैंने एक जगह पे पैसे दे दिए, ठीक है, टैक्स के। अगले साल मेरा टैक्स रिफंड बन रहा है, टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड कब बनता है? टैक्स रिफंड तब बनता है नहीं, टैक्स रिफंड तब बनता है जब जितना टैक्स आपने देना हो उससे ज्यादा टैक्स आप दे चुके हो, तब आपका बनता है टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड एडजस्टेबल होता है, ठीक है। टैक्स रिफंड एडजस्टेबल होता है अगर अगले साल आपने टैक्स देना है 100 रुपए का और आपको पीछे कहीं पे रिफंड पड़ा हुआ है 500 रुपए का, तो अगले साल अगर आपने 100 रुपए टैक्स देना है तो आप उसे कहते हैं मैं टैक्स नहीं देता क्योंकि मेरे पास रिफंड पड़ा हुआ है 500 का, इसको इसके साथ एडजस्ट कर लो, तो अब मेरा टैक्स रिफंड हो गया 400। दिस इज हाउ टैक्स वर्क्स, ठीक है, इन पाकिस्तान प्रैक्टिकली एंड ऑफ कोर्स थियोरेटिकली एज वेल। अब आपका क्वेश्चन है ऑपरेटिंग लॉस का। ऑपरेटिंग लॉस कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट ऑपरेटिंग गेन्स। यहां पर मेरा ऑपरेटिंग लॉस है, यस सर। यस सर। ये 326 मेरे पास लॉस था, नहीं ये तो 960 मेरे पास लॉस था। 960 मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इन अदर वर्ड्स लॉस बिफोर टैक्स। लॉस बिफोर टैक्स आ गई, दिस कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट दी प्रीवियस ईयर बैक 2 इयर्स, यहां पे जा सकता है, ठीक। 2400 प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस 960 यही तो क्वेश्चन है ना कि सर, मैं बोल रहा हूं, क्यों कर रहे हैं हम 816 से क्यों नहीं कर रहे? सर या हम 816 से क्यों नहीं कर रहे? या 816 क्या था मेरा? ये टैक्स है, टैक्स। टैक्स या इस तरह कर सकते हैं और क्वेश्चन सर। एक 816 टैक्स है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा कि ऑपरेटिंग लॉस कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट ऑपरेटिंग गेन। नहीं तो इस तरह कर सकते हैं, मतलब जो ऑपरेटिंग लॉस है हमारा उस पे जो हम टैक्स कैलकुलेट करें वही टैक्स हमारा टैक्स हो जाएगा, नेगेटिव टैक्स, तो वो हम फिर टैक्स रिकवर कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। हाँ, वो एडजस्ट हो जाता है ना, मतलब वो भी एडजस्ट आप कर लेते हैं। जो गेन पे हमने टैक्स दिया वो 816 हाँ। ठीक है, और हमारे पास जो ऑपरेटिंग लॉस पे उस पे जो 326 आया, तो डायरेक्ट हम एडजस्ट कर सकते 816 में 326 816 में मतलब ये 326। मजीद कैलकुलेशन की सर, जरूरत नहीं होगी। excuse me, sir, तरीका ये है, ऑफसेटिंग का तरीका ये है जो मैंने किया यहाँ, जी सर। ठीक है। ऑफसेटिंग का तरीका ये है, जो आपको टैक्स का मैंने बताया है वो टैक्स रिफंड, दैट इज टैक्स रिफंड, ठीक है। टैक्स रिफंड होता है व्हेन यू पे, दोबारा बता, व्हेन यू पे more tax than what you are supposed to pay, that is called as tax refund। वो आप लोग रिफंड को आप एडजस्ट कर सकते हैं 816 में। अब समझ आ रही बात? सर ये दो अलग अलग चीजें, एक ऑपरेटिंग गेन को आप ऑफसेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग लॉस के साथ, ठीक है, और एक आप ऑफसेट कर रहे हैं टैक्स रिफंड को टैक्स लायबिलिटी के साथ, दैट इज कॉल्ड एज टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। और टैक्स रिफंड टैक्स लायबिलिटी के साथ। अब क्लियर है? क्लियर है? ये देखिए, ऑपरेटिंग लॉस कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट ऑपरेटिंग गेन्स, ठीक, ये हो गया।
अब आ जाएंगे taxation, tax refund can be offset against income tax liability. Bas, this is how you are supposed to do it. Operating loss, operating gain के साथ offset होगा. जब offset हो जाएगा उसके बाद tax निकाल लेना कि कितना tax बनेगा. ठीक? जिस तरह यहाँ पे मैंने इसको offset कर दिया, कितना बना? 1440. 1440 के ऊपर tax कितना बनेगा? 489.6. 489.6 इस 8000 से फिर आप लोग माइनस करके यहाँ पे ये करेंगे. ठीक है? अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है, अगर क्वेश्चन आपको नहीं कह रहा, ना करें. गेन करेंगे क्रेडिट. ठीक है? बस फिर यहाँ पे ये कर दें आसान तरीके. ठीक, इस तरह प्रैक्टिकली इस तरह नहीं होता कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को कहता है अच्छा ये लेंगे आप पैसे नहीं देगा. वो ये कहेगा कि ठीक है ये आ गया, अगले साल का इंतजार करो, अगले साल जब आ जाएगा कोई टैक्स उसमें से माइनस करो, मुझे पैसे मत दो. पैसे वापस नहीं देगा. हाँ, इन एक्सट्रीम केसेस पैसे वापस हो जाएंगे अगर बहुत ज्यादा हो और आप लोग क्लेम करें, और अगर आप कहें ना इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि ये मेरा टैक्स रिफंड है, ये मुझे दे दें, तो फिर वो आपको देंगे. पॉज करते हैं. अब ये क्वेश्चन सारा क्लियर है? यस ये क्वेश्चन सारा क्लियर है? ये इसके ये वाला तो नहीं, ये तो हम लोगों ने कहा कि अगर अज्यूम करें ना कि हम लोग कैरी बैक. जी सर. ये इसका कैश फ्लो हो गया, ये इसका कैश फ्लो हो गया, फिर नेक्स्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट का, फिर इसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे? बी वाला नहीं, इसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर पीआई भी फाइंड आउट करेंगे, और फिर आईआरआर भी फाइंड आउट करेंगे. लेकिन किस बेसिस पे? 8000 की बेसिस पे नहीं वाले इस वाली बेसिस पे. गॉट द आइडिया? यस जी सर. कर लेंगे, यस कर लेंगे ना, मुश्किल है कर. एग्जाम में कर लेंगे. एग्जाम में नहीं कर लेंगे सर, सही एग्जाम में नहीं होता सर. वहां पे नहीं कर लेंगे. अच्छा, फिर एग्जाम में नहीं करेंगे, एग्जाम में करेंगे. एग्जाम में एक स्टेप ले बस वो करें. सर थ्योरेटिकल एग्जाम में चले, एग्जाम में 5 की बजाय 2 दिन, बस 2 और 20 मार्क्स दे दें. एक मार्क इसका, एक मार्क इसका, 2 एक मार्क एनपीवी फाइंड आउट करने का, इसको वापस करें, एनपीवी आ जाएगी. और अगर पीआई हुआ तो 1 मार्क पीआई का, 4 मार्क. सही? सर एमसीक्यू में फिर सर बहुत वो हो जाता है. बस सिर्फ ठीक है, तो हर एक एमसीक्यू का एक मार्क है ना, इसको डिवाइड करो, क्वेश्चन को डिवाइड करो. एग्जैक्ट क्वेश्चन Right. आता है सर, ये क्वेश्चन आएगा. सर ये टेक्स्ट को ये सब रिकॉर्ड करो. सर टेक्स्ट को एक्सपेंड करो. टैक्स को टैक्स को क्या करना है? टैक्स को क्या करना है? Exclude something, sir. It's like do not put it in the question, then it will make confusion. But if I don't put it in the question, then it's a simple question of NPV, ना? Simple. ठीक है, I'll give you a simple question of NPV, and then I'll give you one question including tax and losses, yeah, depreciation, so that I can see whether you've got this concept or not. Then it should be subjective, do not be like in form of MCQs. अच्छा चलिए ठीक है, let's put it like this. ठीक है सही. Let's put it like this. Yes. But it will not be for 1 mark, it will be for 4 marks, because I'll be asking you 4 different things. ठीक है? Got the idea? Yes, yes. सही है? चल. आधा घंटा रिजल्ट पीछे रह जाएगा. आधा घंटा 4 मार्क्स पीछे रह जाएगा. फिर एक घंटे. अच्छा आखिर में इसको कर लीजिएगा बस. एक्स्ट्रा एमसीक्यू में इसको डाल दें, बोनस में इसको डाल दें, बस. इसको बोनस में कर दें. सर Okay. इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर. बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है as long as you can calculate it, क्योंकि आगे जाके जब आप लोग टैक्सेशन पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा फॉर्मूली एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो फिर वहां पे ये कैलकुलेशन आपको हर आगे करनी पड़ेगी. यस तो बात तो ये है कि अगर आपको अभी से समझ आ गई तो आप कर सकेंगे ना. ठीक है, वहां पे आप जाके दोबारा भी सीखेंगे, लेकिन अभी से सीख लें. सही. नेक्स्ट वन 6 स्टार्ट करें. Toma pharmaceutical company may buy DNA testing equipment costing 16,000. So now over here बुक वैल्यू your book value or the initial cash outflow is 60,000. 60,000. This equipment is expected to reduce labor cost of clinical staff by 20,000 annually. ये क्या है? 20,000 एक्सपेंस कम हो जाएगा. एक्सपेंसेस कम हो जाएगा. 20,000 expenses कम होने चाहिए. कम हो जाएगा. तो टैक्स ज्यादा हो जाएगा. टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी. टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगा. Taxable income ज्यादा हो जाएगा. तो इसमें बाकी और कोई वो given है? 38% सर टैक्स है. 15. The equipment has a useful life of 5 years but falls in the 3-year property class. अब ये 3 सालों की. 3 सालों के लिए depreciate कितने सालों में होगी? 4 साल. 4 साल. For cost recovery depreciation purposes, no salvage value is expected at the end. ठीक है.
The corporate tax rate for Toma is 38%. Tax rate यहाँ पे 34 था, वहाँ पे हो गया 38. आगे चल. And its required rate of return is 15%. ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा जब इसको सर ये Discount करेंगे. डिस्काउंट करेंगे, ये वहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा. ये भी हो गया. If profits after taxes on the project are negative, ये आ गया. ये वो मान लिया जो यहाँ पे. If profits after taxes, ये. Profit before tax, this is profit after tax. If this is negative, if profit after taxes on the project are negative in any year, the firm will offset the loss against other firm income for that year. इसको वो ऑफसेट करेगा किसी और इनकम के साथ. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप टैक्सेस को कैरी बैक कैरी फॉरवर्ड कर सकते नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. We will offset from the tax of others. दोबारा गौर से टैक्स वाले What? If profits after taxes on the project are negative, अगर मैं ऑफसेट कर दूं रे यार, तो फिर वो नेगेटिव आएगा. फिर तो नेगेटिव आएगा ही नहीं. तो वो कह रहा है कि ऑफसेट ना करें. यहाँ पे हमने ऑफसेट किया था, याद है? इसमें नहीं किया. 326 इस पर्टिकुलर में नहीं किया. यस सर, लेकिन ये जो कैलकुलेशन की है ये इसमें हमने किया है. इसमें किया है ऑफसेट. जी सर. वो कह रहा है ऑफसेट नहीं करना. If profit after taxes on the project are negative, ये नेगेटिव आ गया. Let's say ये नेगेटिव आ गया किसी भी वजह से. The firm will offset the loss against other firm income for that year. तो आप क्या करेंगे कि ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है ना आपका. इसके अलावा तो आप और भी प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे. तो किसी और प्रोजेक्ट का जो इनकम है उसके साथ ऑफसेट उसके साथ इसको ऑफसेट करना. या अदर इनकम, कोई भी और अदर इनकम है उसके साथ ऑफसेट करना. किसी भी अदर इनकम के साथ ऑफसेट करना. Okay. Other firm income for that year. On the basis of this information, what is the present value of the net present value of the project? Is it acceptable? G. How do you find out the net present value? सर नेट प्रेजेंट वैल्यू Net present value के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए? ये सब नोट कर. डिस्काउंट रेट चाहिए सर. Discount rate चाहिए. कैश इनफ्लो चाहिए. एक मिनट. Discount rate चाहिए. 15% के. So discount rate over here is 15%. 15%. यस. Okay. आगे चलें. कैश इनफ्लो चाहिए था. Cash inflows चाहिए. अब आए. अब काम चाहिए. Cash inflows. वो 60,000 का वो डिप्रिसिएशन वगैरह था. फिर आएगी. कितने? ये 60,000 के साथ डिप्रिसिएशन हो, ये जो 60,000 के साथ depreciation. What is 60,000 basically? सर ये बुक वैल्यू Initial outflow. आउट Initial cash outflow. यस सर. Property कितनी years की है? 5 years किया लेकिन 3 years प्रॉपर्टी क्लास. 3-year property class. So 3-year property class would make it 4 years. 4 years. Yes. 3-year property class would make it for 4 years. Property 5 years की है. तो property 5 years की है तो इसका मतलब ये है कि आपका 3-year property class का मतलब क्या है कि depreciation कितने सालों में होगी? 4 साल. 4 साल. अच्छा, 4 सालों में depreciation होगी. Depreciation को हमेशा इसमें से माइनस है. माइनस करते हैं. अभी मैंने कैलकुलेट नहीं की, मैंने सिर्फ माइनस नहीं किया. 4 सालों में माइनस करते हैं. ठीक है? What about the 5th year? 5th ईयर में डिप्रिसिएशन नहीं होगी. 5th year में depreciation नहीं होगी. 5th year में आपको इस प्रॉपर्टी से बेनिफिट मिलेगा. 3 year बेनिफिट ये मिलेगा सर कि वो 20,000 जो सैलरी थी वो उसमें वो 5th year बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पर depreciation जीरो. ठीक है? ये भी लिख दिया. अच्छा, अब आए नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट? सर हर एक कोड वो करेंगे डिस्काउंट करेंगे. किसको डिस्काउंट करूं? यहाँ पर मुझे आपने कुछ नहीं बताया कि व्हाट्स देयर. वैल्यूज फाइंड करेंगे ना सर. वैल्यूज किसकी फाइंड आउट? सर ये डिप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की वैल्यू किस बेसिस पे फाइंड आउट करूं? 60,000 60,000 की बेसिस पे. 60,000 की बेसिस पे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करूं. फर्स्ट ईयर में हाफ हो जाएगा. ठीक है? प्रॉपर्टी क्लासेस 3. So if it is 3, it makes 0.333. 33.33%. For the first year it will be Divided by 2. नहीं 20%. multiply by 2. multiply by 0.2. पहले साल की 0.5. डिप्रिसिएशन 19,998 आई. किस बेसिस पे? किससे मल्टीप्लाई किया? 33.33% पे. तो यही तो आपसे कह रहा हूं ना. 33.33 आएगा 3 इयर्स. हां, 1 divided by 3 equals, कैलकुलेशन करते रहे मेरे साथ साथ. 1 divided by 3 equals 33.0. 1 divided by 3 equals 0.0. 0.33. ये रेट निकला है. Yes, 33.33. ये 33.33 रेट निकला है. Yes. But it is a double declining Yes, yes, sir. DD.
So that means it is 66.66. अब इसको दोबारा ठीक, अब इसको पहले ईयर के लिए दोबारा डिवाइड बाय 2 कर देंगे. So this will be 33.33 for the first year. So 33.33 multiplied by 60,000. 19,998. 20,000 नहीं लिख सकते सर. नहीं 19,998. 19,998. Yes, ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई. अच्छा, अब आगे. अब ये बताएं कि डेप्रिसिएशन तो आ गई, लेकिन इसको किससे माइनस करें? 60,000. ऐसे किससे? 20,000 20,000 से सर. 20,000 20,000 फायदा मिल रहा है ना. 20,000 मुझे क्या है इसका? इनफ्लो है ना, फायदा मिल रहा है. इनफ्लो नहीं है, वो सैलरी बच रही है, जो हमें 20,000 देनी पड़ी थी वो बच रही है. अच्छा, बेनिफिट जो है मुझे, जो बेनिफिट था वो नहीं आ रहा. 20,000 का बेनिफिट नहीं आ रहा. So 19,998. That means $2 सर. $2. Yes. Profit before tax. Yes. ठीक, PBT. Tax rate is 38%. 38%. 0.76. 0.76. Profit after tax Sir, 38% of what? Depreciation, 1.24. 1.24. Tax rate 38%. जीता है. 38% किस चीज की? 38% किस चीज का? टैक्स किस चीज के ऊपर लगता है? Taxable income. टैक्सेबल इनकम पे. टैक्सेबल इनकम इसमें कितनी आ रही है? 2 का 38% क्या आएगा? 0.76. 0.76 माइनस होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 1.2 multiplied by 38%. सही है? लेकिन सर फिर हमारा इनफ्लो 1.24 है. ये सही है? ये कैलकुलेशन तो सही है. कैलकुलेशन सही है? कैलकुलेशन सही है? कैलकुलेशन सही है? कैलकुलेशन सही है? Yes, sir. चेक करें क्लास. यस सर सही है. सही है? मैनुअल में इस तरह है. उन्होंने ये टेक्स्ट जो है राउंड ऑफ किया है 1 डाल दिया है उन्होंने. इसको 1 कर दिया. चलें वो तो छोड़े ना, दैट इज अनदर तो कंसर्न. बाकी सही है. कैलकुलेशन मुझे बताएं सही है कि नहीं? कैलकुलेशन तो सही है. कैलकुलेशन सारी सही है. कॉन्सेप्चुअली सही किया आपने. यस. आपने 20,000 लिया उसका बेनिफिट. यस. 20,000 में से आपने उन्हें डेप्रिसिएशन इसकी बेसिस पे लिया. माइनस ये आ गया. ठीक, इसको माइनस कर दिया. वो आ गया. प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया. इस पे tax इसके ऊपर टैक्स लगा दिया. ये आ गया. इस टैक्स को किससे माइनस करूंगा? टैक्सेबल इनकम से. ये जो टैक्सेबल इनकम से टैक्स माइनस हो जाएगा तो प्रॉफिट 20,000, sir. 20,000 हमारे पास फायदा हो रहा है ना सर. किससे माइनस करूंगा इसको? 20,000, sir. चेक करें दोबारा. किससे माइनस करूंगा? टैक्स तो सर वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब Sir, previously 816 को हमने 8,000 से माइनस किया था. It means जो बेनिफिट था उससे माइनस. किससे माइनस करूं? तो बार-बार आपसे ये पूछूं, किससे माइनस करूं? बेनिफिट से 20,000. Sir, 2 से माइनस. profit before tax. 2 से माइनस करूंगा. Profit before tax. प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और ये टैक्स है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. या 1.2. 20,000. 1.24. अच्छा, 1.24 आ गया. 1.24 क्या है? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस चीज का? बोलिए. 20,000. ये जो हाफ ईयर डिमेंशन नंबर क्या है? डबल लाइन में निकाल के को सही इसको pause करें दोबारा. 3 बार देखना फिर निकाल.